So welcome to the Uncommon Talks. Hi everyone, today we are back with another live session. So this session will be about home workout or any kind of workout you want to do in this time, at the time of lockdown and quarantine, which might help you keeping your fitness up to the mark and keeping you healthy and building your immune system. So today we will have Ankit Narang. So he does a lot of calisthenics with all his body weight and etc. Right? And yeah, so let me just invite him. So if you can, please do make 20 minutes or 15 minutes out of your schedule for home workout or just workout, running, walking, doing chores, anything at home if you can, right? Hi Ankit. Hey man, what's up? Good, good. How are you? Good, good. Cool. Hi Mridul. Mridul is also a power lifter. Last time जब बात हुआ था. In which category, like, does he lift? All three things. Bench, I don't know. and I don't remember. I just saw him doing squats. Mridul, what kind of heavy driver are you? Please tell us in the comments. Yeah. So powerlifting gives another kind of it. I guess you have also done that in college time, right? Yeah, Powerlifting. but I was but I got an injury, so after that I was like थोड़ा दूर था उससे मैं. Because of course, Mm-hmm. अगर जो powerlifting करता है उसको पता है कि the chances of injuries are a lot. And you have to have a proper trainer for that. अगर proper trainer नहीं है अपने में ही कर रहे हो, so it's a very bad thing to do. Of course, you need guidance to lift heavy weights. Yeah, Even very for good the guidance. light weights, or any kind of body weight exercise or any kind of exercise, you need to have some kind of training, some kind of knowledge before you do anything. True. Even push-ups can harm your body if you are not doing that in a right way, in a right posture. So posture is very important. One of my friends, so he started doing squats, okay, normal squats without any weight. So उसको माइंड में था कि स्क्वाट्स के टाइम ना बैक एकदम सीधी रहनी चाहिए and all, एकदम फ्लेक्स होनी चाहिए. So Okay. what he did was, it is a very funny thing. He overflexed his back during normal squats, and he got an Okay. injury. So Shit. imagine. One of my friends, he can't even do squats. There's some issue with his legs. I don't know, some kind of fault in his bones or something. I don't know, but he can't do squats. So there are ways you can do exercises, or you can progress to do some kinds of basic exercises. So you need a progression for that to build up, right? So let's talk about calisthenics. Let's keep it short and let's talk about calisthenics or home workouts. How are you managing in this lockdown? Your fitness And and guys, अगर कोई भी questions हो तो आप comment box में पूछ सकते हो. ठीक है, yeah. उसका note करते रहना. And we are just discussing. We are not professionals. Disclaimer. Yeah. We are not professionals. We're just discussing our routine and how Ankit keeps his fitness and everyone else. So Ankit, over to you. So the one question that I hear is, are home workouts as efficient as gym workouts? Okay. So the answer is yes and no both. I'll tell you why yes. When it comes to workout, the most important thing is your, what should I call it? Your intensity of your workout. So that can be done through heavy weights also and through light weight also. So Okay. home workout में restriction एक क्या होती है, that आपको heavy weights नहीं मिलेंगे, because gym में you have all variety of weights and resources. यहाँ पे Okay. you might be having some pair of dumbbells and nothing else. Yeah. So what you have to do is, you have to increase your intensity. You have to learn कि अपना light weight से ही body weight exercise like squats, आपके push-ups and all those things, उससे अपना intensity कैसे increase करो. For example, अगर आप gym में मारते हो, squats मारते हो, for example 40 kg, 60 kg से, so what you can do at home is आप one leg squat शुरू कर दो. Okay. Yeah. Of course. That is kind of advanced. You have to like use your smartness when it comes to home workouts. अगर आपको पुशअप्स करना है, what you can do is, अगर आपके पास प्लेट्स हैं या कुछ हैं वेटेड 5 किलो 10 किलो, what you can do is अपना बैकपैक करो, उसमें वेट्स डालो and do the push-ups. Right.
That you are telling So for now, progressive buildup of weights, right? That is a yeah, very advanced thing to do. First of all, let's talk about for the beginners or people who aren't interested or but they want to do something at home. So they want to start something from a minimum of, let's say, 2 exercises or 3 exercises. You can tell us for the beginners, just 3 exercises it's you very like. So लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? इट्स नॉट अबाउट द एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज एंड ऑल यू विल गेट एनीवेयर, कहीं से ही पता लग जाएगा, यू नो बेसिक स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड ऑल दोस थिंग्स. मेन Right. प्रॉब्लम आती है उनके माइंड में होता है कि हमें रोज 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, देन हमें सुबह उठ के ही करना है. सो वो चीजें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं बीच में कि अगर 1 घंटा नहीं हुआ तो यार 1 घंटा नहीं हो रहा तो वर्कआउट का फायदा ही नहीं है. अगर हम आधे घंटे में थक रहे हैं, 15 मिनट में थक रहे हैं, या फिर अगर हमें सुबह वर्कआउट में सो गया तो शाम को रात को करने का कोई फायदा नहीं है. तो उससे क्या होता है, आपका 10 में से एटलीस्ट 6-7 टाइम्स तो मिस ही होता रहेगा. सो जब स्टार्ट कर रहा है कोई भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप रोज 15 मिनट भी कर रहे हो, सो 15 मिनट करो, उसका चिंता मत करो कि आपको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है. सेकंड बात, No, I सुबह guess नहीं हो पा रहा या गो ऑन, सुबह नहीं हो पा रहा है, तो कभी शाम भी को. करो. मैं ऑफिस से आता हूँ, Like, मैं of रात को course. 9 बजे करता हूँ. Huh? So you have to make effective and let's say a comfortable time and a schedule for your lifestyle, matching your lifestyle and matching your routine, right? If you don't It's have time in the evening, you should wake up early. If you are, but be consistent. The consistency is the most important thing in this. Even though you are working for 20 minutes, that is, I guess, good enough. 20 minutes of hit, high intensity interval training is good enough, right? true. But every day hit is good. If you do one hit one day, Monday, Tuesday you do hit, Wednesday you rest, Thursday you do hit, True. Friday you do some walk or anything else, and Saturday you do hit, True. and Sunday rest. That can be a good True. routine. Totally true. Okay, what else? सो उसमें यही करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड, अगर आपको जब भी टाइम मिल रहा है उस टाइम वर्कआउट करो, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने के लिए फिट रहना है या 2 महीने या 1 साल. यू हैव Right. टू मेक इट अ रूटीन. ये मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपको 1 महीने में ही खत्म करना है. 1 महीने में चलो मैं पतला हो गया, 2 किलो वेट लूज हो गया, काम खत्म. वो आप रूटीन छोड़ोगे, फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट करा था. सो यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आपको पता है कि आप इस टाइम पे सोते हो, इस टाइम पे आपको ऑफिस है, तो उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पे अपना शेड्यूल बना लो. फर्स्ट इज सेकंड, Right. घर में वर्कआउट करना है, सो बेसिक स्क्वाट्स, बेसिक पुशअप से स्टार्ट कर ही सकते हो. बट आई वुड रिकमेंड कि पोर्टेबल एडजस्टेबल डंबल्स मिल जाते हैं ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, एनीवेयर. वो ऑर्डर कर लो. इट विल कॉस्ट यू 2K, 3K, मैक्सिमम 4K. उसमें क्या हो जाएगा, यू विल हैव योर रिसोर्सेज इन फ्रंट ऑफ यू, और होम पे भी उतना ही अच्छा वर्कआउट हो जाएगा जो आप अपने जिम में करते हो. Right. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस में, इफ समवन इज एडवांस लिफ्टर ऑल्सो, जो 1 साल से 2 साल से जिम कर रहा है, वो भी मैक्सिमम जो डंबल यूज करता है जिम में 5 kg, 7.5, 10, 15 और मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा डंबल्स कोई यूज नहीं करता, लाइक इन द मोस्ट ऑफ Right. द एक्सरसाइजेस. सो यू कैन डू लाइक 70 to 80% ऑफ द पार्ट अपना घर में ही. बाकी आई टोल्ड यू, 1 leg squats, your weighted push-ups and all those things is a great thing to do. Right. And one more Okay. thing, अगर आप, Yeah. yeah, I'll add one more thing also. अगर आपको स्टेमिना रिलेटेड एक्सरसाइज करने का चांस नहीं मिल रहा, बिकॉज यू नो कोविड इज लाइक ऑन द पीक एंड पार्क में जाना इज नॉट सेफ अभी. सो व्हाट Right. यू कैन डू इज, यू कैन डू अ सर्किट. सर्किट मीन 5 to 6 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक. उसमें क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, फुल बॉडी वर्कआउट, एंड विद दैट आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी विल बी अ वेरी गुड इफेक्ट. सो यू कैन Okay. इंक्लूड सर्किट एट योर होम. All right. So I guess I'll talk about few points. There are 2 types of training, right? There is weight, Mhm. that is strength Mhm. training, strength and Mhm. conditioning, Mhm. and there is Mhm. cardio, right? So strength and training where you can do full body exercises. Let's start from the top and to the bottom. In full body, you can Mhm. do shoulders first. Shoulders, पहले warm up 10 minutes का. You can do jumping jacks or Surya Namaskar. It is also a good one. You can use Mhm. resistance band. So start small with small investment. When you get determined and dedicated to the workout, let's say Mhm. 2 or 3 months हो गए करते करते workout, then you should invest in weights, right? Because I started True. investing in weights after a year of continuous workout. Then I invested 2 or 3 thousand in that. So you Mhm. can go to Decathlon, you can buy a resistance band which is good for your workouts as well as your warm up. You do warm up, True. then you go to burpees. 10 burpees हो गए, then you can do a shoulder push up, right? Pike push ups,
then you can do normal push-ups because pike थोड़ा hard होता है तो ज़्यादा energy लगेगी, तो hard से easy पे आते रहना, तो that will be easy. True. Then shoulder हो गया तो chest के बाद you can do arms, after arms you can do legs, right? And at you can do core. Although इसमें सब में core engage हो जाएगा आपका, but इसमें core warm up हो जाएगा. So if you do plank at the starting, तो वो इतना effective नहीं लगेगा और pain ज़्यादा होगा, I guess. ठीक है, resistance ज़्यादा लगेगा. But after your core gets warm up, ठीक है, उसके warmed up होने के बाद वो जो plank करोगे और mountain climbers करोगे, that will be more effective. Or also, True. after synth, cardio is very beneficial. Do you agree? Yeah, totally. After weights, कार्डियो करना काफी ज्यादा इफेक्ट बढ़ा देता है फैट लॉस और लीन मसल बनाने का. लाइक लीन मसल तो तुम्हारा वेट ट्रेनिंग से बन गया, एंड फैट लॉस जो है बिकॉज तुम्हारी पूरी बॉडी अब एनर्जी यूज कर चुकी है ऑलमोस्ट सारी, अब जो यूज करने के लिए बचा है वो फैट बचा है बॉडी में. True. आई गेस ये स्पॉट रिडक्शन कहीं नहीं होता है. इट इज अ मिथ इफ पीपल से कि यहाँ से कम कर दो और वहां से कम कर दो. अपना फेस फैट कम कर लो, अपना बेली फैट सिर्फ कम कर लो, अपना आर्म्स का कम कर लो, सब बकवास है. Right. So spot reduction is a myth, right? And I guess there is a question. How to get that daily motivation shot to keep it regular? See, who is that? Sorry, my dogs hate you. Okay. Someone asked that कि रोज का motivation कैसे high रखे. So I guess that was also told in our will over skill wala podcast. So I keep my motivation is like not a continuous thing. वो आता जाता रहता है, right? To keep your motivation. I'll tell you how I started. So my roommate was a very good bodybuilder, okay? But उसके बाद भी जब मैं hostel में था, so I used to see him and all. So मुझे तब था कि ठीक है, अच्छा है ये वो. But after some time, he used to show me कि bodybuilding or being fit is not about 1 month, 2 month, 3 month thing. इट इज अ थिंग कि लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं टू रीच दैट स्टेज जहां पे लोग आपकी बॉडी बोल को देखें वाह मतलब कि मजा आ गया देख के. ऑल द प्रोफेशनल एथलीट्स एंड ऑल दोज आर ऑल द पीपल हो जो 5 साल 10 साल से इस चीज में लगे पड़े हैं. So, ये जो मिथ है पहला निकाल दो कि आप 1 या 2 महीने में कर लोगे, नहीं होगा. सेकंड, आई विल गिव यू अ टिप. देयर इज अ ट्रेनिंग कॉल्ड वेगाबॉन्ड ट्रेनिंग. सो वेगाबॉन्ड ट्रेनिंग क्या होती है? जिस दिन आपको मोटिवेशन नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, थका हुआ हूं थोड़ा, कुछ भी ठीक है, सो उस दिन आपको कैसे स्टार्ट करना है? जस्ट गो टू द अपना जहां पे वर्कआउट करते हो, लिफ्ट योर वेट्स या कुछ भी, एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रैंडमली विदाउट गिविंग एनी थॉट कि रूटीन क्या है मेरा, कि पहले बाइसेप्स करने हैं, चेस्ट करना है, शोल्डर करने हैं. कुछ भी करना स्टार्ट कर दो, एंड आफ्टर सम टाइम वो आपको अपने आप अंदर से पंप आ जाएगा, योर बॉडी विल गेट हीट अप, और उसके बाद आपका रूटीन अपने आप वो सेट हो जाएगा उस टाइम पे. राइट, ओके. एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप फिटनेस रूटीन अपना स्टार्ट कर रहे हो एकदम, ठीक है, पहले मोटिवेशन आपके अंदर से होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, कि आपको अपने में चेंज लाना है या नहीं लाना. अगर फिजिक में अपीयरेंस में चेंज लाना है वो अपना पर्सनल चॉइस है, बट सेकंड अपना हेल्दी रहना है, अपना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, अपना स्ट्रेचनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो तो होना ही चाहिए सबको, बिकॉज वी हैव सीन दैट बीइंग हेल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी कभी भी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, एंड ऑल द बेनिफिट्स, आपकी स्किन अच्छी रहती है, हेयर विल बी गुड. सो उसमें क्या होता है कि आपको पहले 1 या 2 महीने एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी है, मतलब एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं. इट इज लाइक लर्निंग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. If someone जिसने पूछा है ये, I know him, he learned guitar, he knows guitar. So पहले उसने गिटार सीखा. My dogs hate you. He used to work with me in this organization, so he knows guitar. अगर उसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब उसने गिटार स्टार्ट करा होगा, तब स्टार्टिंग में 1-2 महीने कुछ नहीं समझ आया होगा क्या कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो हैंग आ गया कि अपने आप यू गेट द फीलिंग, वाइब. सो इसमें भी वही करना है, पहले 1-2 महीने कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखोगे, आपके चेंजेस आएंगे एंड ऑल, बट आफ्टर सम टाइम you will start noticing the differences in your physique and जो भी. So उसके बाद आपको वो अंदर आ जाएगा कि हाँ इस तो फायदा है इसमें, it is a really good thing. आपको ओवरऑल अच्छा लगने लगेगा, आपको posture सीधा हो जाएगा, and many more benefits. So 1-2 महीने पेशेंस रखनी है, उसके बाद it will be a very smooth thing. Okay, एक और क्वेश्चन आया हुआ है by तने Tani or something. Sorry if I'm pronouncing it wrong. How do you tell your muscle to just use your energy for weight training and save fat for cardio? It doesn't work like that, I guess. मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, but it doesn't work like that. जितना मैंने प्रोफेशनल लोगों से सुना है आज तक, it is just that एनर्जी जो जाती है सो जाती है, right? Your fat is also burning up in the process. No, उसका मैं समझ गया क्वेश्चन. So it is about your goal. तो गोल क्या है? If your goal is to increase your endurance,
If you're preparing for a marathon or something, if you want to increase your cardiovascular health or something, तो आप कार्डियो पहले करो वर्कआउट में, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली आपकी एनर्जी कम रह जाएगी एंड में, उतना फोकस Obviously, नहीं yeah. दे पाओगे, एंड वेट लिफ्ट कम कम करोगे तो ऑब्वियसली मसल ग्रोथ कम होगी. इफ योर प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज योर मसल, सो ऑब्वियसली आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले रखो, एंड अगर आपका कार्डियो सेकेंडरी चीज है तो बाद में करो. इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग. ओके ओके, अच्छा ये है. बट या मसल तो आपका सी इट डिपेंड्स कि कार्डियो करोगे तो कैसे टाइप का मसल बिल्डअप होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो किस टाइप का मसल बिल्डअप होगा. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तुम काफी स्पेसिफिक हो सकते हो अगर तुम्हें मसल जिस जगह बॉडी पार्ट का बिल्डअप करना है, बट फैट तो अल्टीमेटली कहीं से भी जाएगा, वो स्पेसिफिक जगह से नहीं जाएगा. अगर तुमने कार्डियो कर लिया, तुम 2-4 किलोमीटर तुम भाग लिए, तुम थक गए हो, ऑब्वियसली तुम्हें उस टाइम पे स्ट्रेंथ कम बचेगी कि तुम हैवी लिफ्ट वेट कर सको, एंड यू कांट अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे. वर्सेस अगर तुम एकदम फ्रेश हो और तुमने लिफ्ट करना स्टार्ट करा, ऑब्वियसली बी एबल टू लिफ्ट हैवी वेट. तो डिपेंड करता है तुम्हारा गोल क्या है. फैट लॉस पे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इफ यू सी इन द लॉन्गर टर्म, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर बर्निंग योर कैलोरीज, एंड आपकी बॉडी को नहीं पता क्या कर रहे हो. आपकी बॉडी को इतना समझ आ रहा है कि हाँ मेरे पर ये वर्क हो रहा है, अभी ये वर्क हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो कैलोरीज बर्न करेगी, चाहे आप इंड्योरेंस करो चाहे स्ट्रेंथ. वो गोल पे डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या करना है. राइट. सो आई गेस strength training will help you build muscles. He has said 10 years said, bro, keep it simple. It's calorie in versus calorie out. So I'll tell you a very good thing about this. There was a study done where there was one doctor who ate only Oreos and chocolates. Okay, all the shitty food. And he consumed less calories than the other person who consumed a very healthy diet, but he was consuming considerably higher calories. So in the end, बताओ किसका वेट लॉस ज्यादा हुआ होगा? The person who was eating shit less calories or who was eating a very healthy diet but more calories. जो कम कैलोरीज खा रहा था ऑब्वियसली. कम कैलोरीज खा रहा था बट पूरा शिट खा रहा था. अल्टीमेटली उसका वेट लॉस ज्यादा अच्छे से हुआ. बट इसका एक और चीज भी है जो पूछा शिवम ने. So there is a concept called thermogenic effect of the food. ओके, इसमें क्या होता है कि जो हम फूड्स खाते हैं हमारी बॉडी को भी एफर्ट लगता है फूड डाइजेस्ट करने में कुछ. ओके, हमारी बॉडी जब तुमने कुछ खाया, ठीक है, अब एकदम से तो होगा नहीं कि तुम ऐसे डाइजेस्ट हो गया, बॉडी को एफर्ट करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने में. सो जब आप प्रोटीन खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने खाया 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो बॉडी को 30% ऑफ दैट 100 ग्राम्स डाइजेस्ट करने में लग जाएगा. सो अल्टीमेटली जो 100 खा रहे हो बॉडी में लग रहा है 70. तभी वेट लॉस एक्सपर्ट्स एंड ऑल होते हैं, कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट पे जाओ. वर्सेस अगर आप कार्ब्स खाते हो, तो जब कार्ब्स खाते हो तब आपका अराउंड 10 to 5% बॉडी का एफर्ट जाता है कैलोरीज बर्न करने में, एंड जब फैट्स की बारी आती है 0 to 3% नेग्लिजिबल. सो ये भी हो रहा है कि आप किस टाइप का फूड खा रहे हो, उस हिसाब से आपकी बॉडी एक तरीके से मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब आप रेस्ट कर रहे हो और आप रेस्ट करते करते कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो. बिकॉज जब हम सो रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, अभी भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं. अगर आप सो रहे हो तभी भी. सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का फूड खा रहे हो, किस तरीके का अपना लाइफस्टाइल. राइट. सो गुड. सो मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ाना भी है, लाइक कार्डियो से भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी बढ़ता है. जब लीन मसल मास व्हेन दैट इंक्रीजेस, तो तुम्हारा जो मेटाबॉलिक रेट है दैट विल आल्सो इंक्रीज, राइट? सो उसके लिए चाहिए बेसिकली एक ही चीज, कंसिस्टेंसी. और मोटिवेशन लो होता है, सो ऑलवेज या तो लुक एट योर बॉडी. जिस गोल की तरफ तुम्हें जाना है वो अगर तुम्हें अचीव करना है, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड. जिस दिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मे बी वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो, मे बी वॉच समवन एल्स, बट जस्ट गो इन द पार्क और गो टू योर मैट एट होम, जहां भी तुम एक्सरसाइज करते हो उस प्लेस पे जाओ, लिफ्ट समथिंग, स्टार्ट जंपिंग, डू समथिंग और अदर. Just move your body. As simple as that. As simple as that. How to get fit? Move your body. Get up and move your body. वो फोन में देखने से कभी नहीं होगा कि इसकी बॉडी इतनी अच्छी है तो मेरी भी बन जाएगी. नेवर. जिम कितनी भी बार ज्वाइन करो, मेरे फ्रेंड्स प्रोटीन लेके थक गए हैं, पैसे इन्वेस्ट करके थक गए हैं और दुनिया भर की बार जिम जा चुके हैं, पूरे साल का पे कर देते हैं, बट डजंट मैटर अनटिल अनलेस कि तुम पूरा साल जाओ. पहले स्टार्ट करो खुद. सेल्फ डिटर्मिनेशन इतना होना चाहिए कि खुद स्टार्ट कर पाओ, खुद उस चीज को कम से कम 3-4 महीने मेंटेन कर पाओ. Even for cardio, what most people do is just treadmill or cycling, that to like or at least level of difficulty speed. People need to understand the
then so treadmill and totally the same thing is saying. Any questions देख और आए हैं? हाँ, better to go with hit और एक कह रहे हैं बहुत चीजों से कैलस बर्न होती है. राइट, होती है भाई, तो जिससे होती है वो कर लो, इट्स ओके. True. कैलोरीज बर्न कैलस बर्न करने का मतलब है. बट कुछ चीजें ऐसी भी तो जैसे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, फिर कैलोरीज तो हो जाएंगी बर्न. जब तक बॉडी पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा ना, तब तक बॉडी समझ नहीं पाएगी कि मेहनत क्या होती है और इम्यूनिटी क्या होती है. Exactly. So you have to do that. And I guess one more topic I wanted to cover. One more topic I wanted to cover कि लोग क्या कहते हैं जब we go on our diet fitness program, okay, कि घर का खाना हम खाएं या ना खाएं, कि हमें कोई अलग exotic diet follow करनी पड़ेगी or something like that. So the answer is you can eat your home food and still burn calories and get fit. बहुत basic thing बताऊंगा, बहुत logical thing. जिस culture में हम बड़े हुए हैं, for example अगर आप कहीं और रहते तो अलग था, बट आप इंडिया में रहते हो, आप बचपन से एक सर्टेन फूड खाते हुए बड़े हुए हो, एंड योर बॉडी नोज कि ये फूड से योर बॉडी हैज डाइजेस्टेड योर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल द थिंग्स इन योर बॉडी, राइट. बिकॉज अगर मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता, सो होता क्या कि घर का खाना खा रहे हो आप, रोटी चावल दाल, with that you will have to include some protein sources like egg, if you eat non-veg then meat, milk, soya, paneer, tofu and things like these. If you're adding these things with your home food, then yes, it is a good to go thing. You can lose your weight along with your home food. Okay. And one more thing, जिसको खाना भी नहीं छोड़ना और still weight lose करना है, हमारे जैसे लोग. Okay. Yeah, exactly. So again, very simple calculation. For example, अगर आप 2500 calories consume कर रहे हो, okay, daily, आपका on an average इतना रहता है कि 2500, for example, जिनेंद्र तो इतना रहता है, ठीक है? Right. अब इतने में खाना तूने नहीं छोड़ा, उतना ही रखा है अपना. Along with this food, तूने अपना कार्डियो इंक्लूड कर दिया, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर दिया, so उससे you are burning 200 to 400 calories. Okay. When that calculation will reach to around 7000 or 8000 calories, आपका 1 kg weight lose हो जाएगा. So as simple as that. Okay. Yeah. और फिटनेस ऐप कौन से यूज करते हो तुम? I'm finding one. कोई यूज मत करो फिटनेस ऐप. Don't go technical. Keep it basic. Want to. If people want to start, देख सी हमें थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया होगा कि इतना खा के इतना काम चल जाएगा. फिटनेस ऐप का यूज क्या होता है? किसी के लिए रूटीन बनाने के लिए इजी है, जैसे किसी को कंफ्यूजन ना हो, राइट. जब तुम टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हो किसी चीज के लिए, दैट इज मोर इफेक्टिव देन रैंडम थिंग्स, राइट. वैसे वाला है. फिटनेस ऐप में क्या होता है, यू विल इंक्लूड योर फूड्स जो आप खा रहे हो, राइट, जो डेली बेसिस पे, राइट. उसमें बेसिक फूड तो सारे होते हैं, बट इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ अदर फूड्स जो आपको एक बेसिक ऐप पे नहीं मिलेंगे. यू ईट योर स्वीट्स, यू ईट मेनी अदर थिंग्स. आप दाल खा रहे हो, 10 तरह की दाल होती है. ट्राइड दिस, माय फिटनेस पैल है अंडर आर्मर का, दैट इज वेरी गुड. मैं लास्ट टाइम लॉकडाउन में 10 kgs लूज किया, राइट, व्हेन आई मेट यू आफ्टर लॉकडाउन. सो इट वाज जस्ट होम वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट्स, मेनली फुल बॉडी वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स की अपनी बॉडी से कैलिस्थेनिक्स वगैरह करके घर में पुशअप, स्क्वाट्स एंड ऑल. एंड थोड़ा बहुत मेरे पास वेट था 10-12 किलो, क्योंकि अगर वेट हल्का है तो मसल ज्यादा रेप मार सकता है, तो वो वेट वैसी ज्यादा रेप से आई गेस मसल तो कम हो गया, पता नहीं क्या हुआ उससे, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, बट या मसल इतना इंक्रीज नहीं हो पाया क्योंकि रेप ज्यादा थे, वो जिसको तुम कहते हो कटिंग हो रही थी, राइट. तो मैं इतना जिम गया नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं है. सो क्वेश्चन है, does eating protein causes pimples? So पता नहीं, I don't know. कुछ foods होते हैं that causes heat in your body, like a lot of nuts, egg yolks and all these things, or even milk products. अगर आप अपना protein source dairy रख रहे हो, then yes, it can cause you pimples. But अगर आपका protein source clean है, for example, आपका chicken breast हो गया, आपका egg whites हो गए, your tofu and all these things, तब आपको pimples नहीं होंगे. But yes, consuming a lot of dairy, प्रोटीन का सोर्स है, आप पनीर रख रहे हो, अपना मिल्क रख रहे हो, एग योक्स रख रहे हो, देन यस इट कैन कॉज पिंपल्स, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन. बट आई गेस ही इज आस्किंग फॉर वे प्रोटीन ब्रो. अगर वे प्रोटीन भी खा रहे हो, आई गेस उसमें कुछ नहीं होता है. एल कार्निटीन और BCAA इज समथिंग जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा पिंपल और रैशेज होते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स को 1-2 बार हुए हैं, क्योंकि उसमें तुम्हें अराउंड 5 to 6 लीटर पानी पीना पड़ता है एवरी डे. Yeah, so protein, basically whey protein is made of milk only. Yeah, so if someone is allergic, if someone no, because अगर जो जिनके भी पिंपल प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम होती है,
So what expert says, मुझे थोड़ा बहुत पता है कि dairy products मत खाओ and oily products मत खाओ, salty products. So dairy product, whey is a dairy product. So instead of whey, what you can do is you can choose a veg source of vegan source of protein or something like that, and you will be good to go. I guess Farquan, this answers your question. And जब मैंने last time अक्षांत से बात की थी, so he's a nutritionist, certified one. So he said until and unless you're weightlifting या फिर proper competition वगैरह में जाना ही है तुम्हें, और उस टाइप की proper body बनानी है कि तुम्हें कहीं मॉडलिंग या फिर किसी ad वगैरह शूट करना जाना है, कुछ भी anything like that. If you want to go in entertainment industry, तब प्रोटीन मैटर करता है. अगर if you want to maintain your normal day fitness, तो पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. स्प्राउट्स, बॉइल्ड छोले वगैरह, ठीक है, और ब्रोकली, ये सब बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत इजीली तुम खा सकते हो, डाइजेस्ट होगा. I don't completely agree to him. Till some point he's right. अगर कोई normal individual है जिसको सिर्फ fit रहना है, then yes, protein is not required. But if, for example, I have a thing that I have to achieve a good looking physique, like अच्छी physique बनाना है, big arms and big chest and all. So उसके लिए if you have to complete your daily requirement, depend करता है अगर आप पूरे टाइम घर पे हो, if you have time to cook your food, then of course you can eat homemade food. But for example, अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपने 12 घंटे बाहर हो, तो आपको पहली बात खाना बनाने का टाइम उतना नहीं मिलेगा कि आप इन्वेस्ट कर सको उस पे. राइट, वो उसको फुलफिल करने के लिए वो फॉर योर कन्वीनियंस उधर काम आ जाते हैं. राइट, तब दैट इज व्हेन अ डिफरेंट केस. वो तो एक्सेप्शन जैसा हो गया कि अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो फुलफिल करना है अपना की. अगर कॉलेज स्टूडेंट है कोई तो उसको जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो मैनेज कर पा रहा है अपने मील्स कुक करने. बट यस, अगर ज्यादा कन्वीनियंस रखनी है, सो यू कैन गो फॉर दैट. हाँ, राइट. ओके, सो इफ यू वांट टू लूज वेट, तुम्हारा आज तक कभी वेट गेन हुआ हो तो उसके लिए तुमने क्या? Losing weight is the simplest thing on the earth. लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि पता नहीं क्या. डोंट स्पेंड योर मनी ऑन न्यूट्रिशनिस्ट से मनी स्पेंड मत करो अपने वेट लूज करने के लिए, बिकॉज 2 चीजें होती हैं, लूजिंग वेट एंड चेंजिंग योर बॉडी कॉम्पोजिशन. लूजिंग वेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका 20% फैट है बॉडी में, 80% लीन मसल है. लूजिंग वेट क्या होगा? आप 100 से 80 kg आ जाए पर आपका परसेंटेज वही रहेगा. दैट इज कॉल्ड लूजिंग वेट. यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग? अच्छा. बट फॉर एग्जाम्पल, आप 70 kg का इंडिविजुअल हो, आपका 20 फैट है एंड 80% पोजीशन चेंज कर रहे हो. आपने मसल कर लिया 12%, सॉरी फैट कर लिया 12% एंड मसल 88, तो आपका वेट उतना ही रहा पर बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो गया. आप ज्यादा रिप्ड हो जाओ उसी वेट में. सो कॉम्पोजिशन चेंज करने के लिए यस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. बट अगर सिर्फ वेट लूज करना है कि हाँ कैसे भी करके वेट कम हो जाएगा, बस हाँ वेट कम हो जाए कैसे भी करके, उसकी चिंता नहीं है कि बॉडी फैट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा. तो बहुत वेट लूज करना और फैट लूज करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. Different thing, exactly. Fat lose करना is changing your body composition and weight lose करना simply आप lose कर रहे हो अपना weight. Exactly. So I guess please go ahead. Sorry. Weight lose करना अगर गोल है, then do nothing. थोड़ा अपना डाइट में चेंजेस करो, increase the protein sources, थोड़ा कार्डियो इंक्लूड कर दो and be consistent. अपना weight training में indulge हो जाओ and easily आपका weight lose 2-3 महीने में रिजल्ट दिख जाएंगे. बट पहले महीने एक्सपेक्ट मत करना कि 1 महीने में आप 4 किलो 10 किलो 8 में वेट, वो मत करना. So I saw this video by, I'll tell you the name, how to design an effective workout plan for beginners, right? That can be a home workout. So it says if you want to lose fat and weight and add more muscle tone, so you should do 2 days of strength training, 2 days of HIIT, and 1 day of low intensity steady pace cardio. Right, and this video is by Joanna SOH official, right? You can search it on YouTube, how to design your effective workout plan. This might help you, right? And there is one guy called Ethan X. He's also on YouTube. He has trained Hrithik Roshan. He has trained Amir Khan. वो काफी workout tips वगैरह देता है. So if you want to see that, you can go ahead and watch that also. थोड़ा बहुत idea मिल जाएगा home workouts के लिए. बाकी तो I guess बेस्ट एक्सरसाइज, तुम्हारी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? Strength exercises, deadlift, squats, bench press. Compound, basically compound. I love compound exercises, man. तुम्हारी अगर compound exercise, you have to do even abs. Yeah.
इवन दो डेडलिफ्ट्स में क्या होता है, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज डेडलिफ्ट्स एंड ऑल में इंजरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं व्हेन यू गो सुपर हेवी. राइट टोटली एग्रीड. मैक्सिमम मैं तो गया हूँ, मैक्सिमम 150 है. आई नो मेरे वेट के लोग 200 तक चले जाते हैं, बट आई विल गो अच्छा. ग्रेजुअली देयर. बट या 150 में आई गॉट मल्टीपल रिप्स लाइक 8 to 10 रिप्स. सो दैट वाज अ गुड स्पॉट फॉर मी एंड मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भी है. बट यस, व्हेन यू आर डूइंग कंपाउंड एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंजरी ना हो. लाइक दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एक्सरसाइज. इंजरी हो गई तो आपका सारा रूटीन छूट जाएगा, आपका डाइट छूट जाएगा, मोटिवेशन चला जाएगा सब. सो फर्स्ट थिंग इज कि इंजरी अवॉइड करो एट एनी सर्कमस्टांस. ईगो लिफ्टिंग में बिल्कुल मत जाओ. एग्जैक्टली कि कोई और इतना उठा रहा है तो मैं भी उठा लेता हूँ. आई हैव सीन अ गाय डूइंग 140 का लेग प्रेस. अभी लास्ट इस ईयर में जिम गया लाइक फॉर अ मंथ और सो आई वाज लेग्स एक्सरसाइज वगैरह पूरा डेडलिफ्ट एंड ऑल पूरा कंपाउंड ही करता था मैं एवरी डे 2 महीना बिकॉज वेट्स मोर वेट्स. सो दिस गाय very skinny guy even without warm up and all, so he went on to do leg press 140 kgs पे. उसने उसकी लेग सिर्फ इतनी मूव कर रही थी. That was the most I was so scared for him क्योंकि वो लेग प्रेस वाला वीडियो देखा हुआ मेरा इतना ज्यादा फटता है उस चीज से. बट आई डोंट नो कैसे करते हैं. और वार्म अप, वर्कआउट एंड देन कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गाइस डोंट नो, कूल डाउन से काफी इंजरीज और काफी जो बॉडी रिजिड हो जाता है ना, दैट रियली हेल्प्स यू विद दैट. तो कूल डाउन इज वेरी नेसेसरी. लोग नहीं करते जिम के बाद, लोग नहीं करते वर्कआउट के बाद. सो फेवरेट एक्सरसाइज वार्म अप का बताता हूँ मैं एक चीज जो लोग कई बार गलती कर देते हैं कि वार्म अप पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं. 3 to 10 minutes of running, 10 minutes of running, then stretching and all those. तो वार्म अप क्या करो, वार्म अप सिर्फ इतना करो कि आपको इंजरी से बच जाओ बस. वार्म अप पे आपको अपना एनर्जी, फॉर एग्जांपल आपका टैंक 100% फिल्ड है तो ये नहीं करना आपको वार्म अप के टाइम में 70% आ जाए. नहीं आपको काम करना है कि फ्यूल अपना 90% एटलीस्ट रखना है ताकि आप वो वर्कआउट में अपने हेवी लिफ्टिंग में यूज कर सको या प्रॉपर जो एक्सरसाइज कर रहे हो. राइट. सो अगर किसी को स्टार्ट ही करना है, सो my personal favorite exercise body weight में is burpees. Burpees is a good way to burn calories for cardio. Yeah, you don't have like even 10 minutes नहीं है तुम्हारे पास, 10 minutes का ही मन करता है कि तुम 10 मिनट ही वर्कआउट कर पाओगे. Dude, burpees every day. जितने 10 मिनट में burpees कर सकते हो because एक मैंने पूरा वर्कआउट चैलेंज देखा था 30 days का. So I tried all these challenges in last year. So 30 burpees can be done in 7 minutes अगर तुम बिगिनर हो तो बर्पीज तुम्हारी कैलोरीज बर्न करता है, मसल टोन लेके आता है बिकॉज उसमें पुशअप, स्क्वाट्स और जंप तीनों चीजें आ गई हैं. ट्रू. सो काफी बेहतरीन एक्सरसाइज है वो मेरे हिसाब से. वो घर पे स्टार्ट करना है एंड पुशअप स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल बहुत लोग पूछेंगे पुशअप्स कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि ऑब्वियसली इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, इनिशियली मुश्किल होता है. तो उसमें क्या करो, इंस्टेड ऑफ योर टोज अपना नीज के थ्रू स्टार्ट करो एंड स्टार्ट योर पुशअप्स. और मतलब नीज कांटेक्ट होंगे पीछे फॉर पुशअप्स. जिसको पुशअप्स मतलब कुछ भी नहीं आते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है. जब हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, हाँ नीज से स्टार्ट करो एंड डू पार्शियल रेप्स. पूरा भी नीचे आने की जरूरत नहीं है. पार्शियल रेप्स से स्टार्ट करो या थोड़ा स्टार्ट करो एंड अल्टीमेटली यू विल डू इट. और यू कैन डू इंक्लाइंड पुशअप्स, मतलब बेड या किसी का सपोर्ट लेके ऐसे टिल्ट होकर, राइट, उस पे कर सकते हो. थोड़ा हेल्प मिल जाता है उससे. लेग्स का सपोर्ट आ जाता है तो थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा. तो वहां से स्ट्रेंथ गेन करके यू कैन डू कम टू नॉर्मल पुशअप्स. सो पुशअप्स, स्क्वाट्स, कि अपना स्टार्ट करो पुशअप्स करना. अगर स्टार्टिंग पहले दिन तुम्हारा एक भी नहीं होता पर तुम कंसिस्टेंट हो, 1 महीने बाद तुम आराम से 10 से 15 कर रहे होगे, लाइक ये गारंटेड है. ऑब्वियसली. तो जरूरी नहीं है कि मतलब एक दिन. नाउ वी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 1 or 2 push-ups or 3 push-ups. Yeah, totally. I was in 11th, I remember. So what I started yeah, when I was in 11th में I used to do like 4-5 push-ups in a go. And I continued. और उसके बाद after 2 months I was doing like 100 push-ups daily. So was consistent रहो यार. अब तो तुम खैर 3 So if anyone wants to have any tips on human flag वाला तो उसके पास वीडियो है अंकित का इसके चैनल पे. Calisthenics has started because it is fun. Normal workout में क्या होता है, yeah, it is fun. थोड़ा बोर हो जाते हो. Normal कभी-कभी boring लगता है, so you have to try different things. Exactly, mix and match. I used to do this cardio, skipping. I do skipping a lot. अगर see कोई exercise नहीं करनी है किसी को and you have to maintain your fitness. People
go for skipping. Skipping इतना wonderful, इतना amazing exercise है. Skipping best है. True. 15 minutes of skipping in the morning or evening, anytime you have time. 15 minutes of continuous skipping can give you a lot of fat burn, can give you a lot of metabolism and strength. Because कोई study हुआ है कि 10 times jump करने से normally भी तुम्हारी bone strength और क्या कहते हैं ये cardiovascular ज़्यादा capacity बढ़ता है. So start skipping. Skipping is very good. Skipping का investment भी 2 है. ट्रू. और अगर घर में कुछ भी नहीं है ना, डंबल्स है कुछ, हाँ स्टार्ट करना है बेसिक रूटीन, सो 50 पुशअप्स 50 स्क्वाट्स से सिर्फ स्टार्ट करो ऑल्टरनेटिव डेज पे. अगर कुछ भी नहीं है, डंबल्स भी नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है लेना, सो 50 पुशअप्स 50 स्क्वाट्स से स्टार्ट करो ऑल्टरनेटिव डेज पे, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग, इससे भी चेंजेस आ जाएंगे तुम्हारी बॉडी. हो गया 50 भी एज अ फॉर अ बिगिनर बहुत ज्यादा है. 50 लेट्स से 30 स्टार्ट फ्रॉम 35. अपना जैसे आर्नोल्ड कहता था, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पुलअप्स उससे पुलअप्स करने होते थे 50, सो एना वो ऑब्वियसली मुश्किल है या 10 के सेट में 15, बिकॉज ही वाज अ हेवी डूड. सो वो क्या करता था, उसको 50 टोटल करने हैं, चाहे वो 3 रेप के सेट्स में करे, चाहे 4 में करे, चाहे 1 में करे. द गोल इज टू डू 50. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल उससे 1 भी नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पुशअप फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट करा, हमसे 5 होते हैं मैक्सिमम, तो मैं चाहे 1 में कंप्लीट करूं, चाहे 4 मारे मैंने, अगले सेट में 3 मारे, अगले सेट में 5 मारे, तो मेरे को 50 नंबर कंप्लीट करना है बस. उससे क्या होगा, वॉल्यूम ट्रेनिंग है, वॉल्यूम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. बट फॉर द स्टार्ट लेट्स से यू कैन डू 5 के 30 तक, 30 से 50 से आगे, सो ऑन, व्हिच इज आई गेस गुड इनफ. और कार्डियो इंक्लूड कर लो. स्पॉट रनिंग इज गुड यार, स्पॉट रनिंग इज गुड, जंपिंग जैक्स इज गुड, बर्पीज इज गुड. ये सब चीजें वार्म अप के लिए यूज होती हैं. जो स्कूल में पीटी सिखाते हैं वो हैंड रोटेशंस एंड ऑल, दैट इज गुड इनफ फॉर वार्म अप्स. 10 मिनट का वार्म अप और 40 मिनट्स का वर्कआउट एंड 5 to 10 मिनट्स का कूल डाउन. ये अगर प्रोपोर्शन रखोगे, अगर 1 आवर का वर्कआउट करना है, विच इज गुड इनफ. ट्रू. तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है, अगर तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उसको बस ये पता है कि उसकी मसल्स यूज हो रही हैं लेग्स की. सो बस वो माइंड में रखते चलो, तुम्हें उस मसल पे वर्क करना है, चाहे तुम स्क्वाट से करो, चाहे रनिंग से करो, चाहे लंजेस से करो, कैसे भी करो. अगर वो मसल वर्क हो रही है, अल्टीमेटली विल ग्रो. कूल. और कोई टिप्स किसी के लिए? काफी शॉर्ट ही रखेंगे इसको. और आई गेस 4 day वर्कआउट इज गुड. अपना सेट्स को, रेप्स को, या स्टार्ट इवन विद 3 day ऑल्टरनेटिव, स्टार्ट करो 3-4 days. हाँ, 1 day इंटेंसिटी के साथ, लाइक 20 मिनट्स करा फुल इंटेंसिटी के साथ, अगले दिन रेस्ट, इंटेंसिटी देन रेस्ट, इंटेंसिटी देन रेस्ट, एंड गुड. एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्टिव रेस्टिंग. एक्टिव रेस्ट क्या होता है, अगर आप जिस दिन रेस्ट कर रहे हो, ये नहीं कि पूरा दिन सोते ही रहो, पड़े रहो, कुछ मत करो, तो उस दिन भी एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक और समथिंग, थोड़ा रनिंग कर लिया, हल्का सा जॉगिंग, प्ले सम स्पोर्ट. एंड स्पोर्ट इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है, स्पोर्ट से बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज आपको टाइम का पता नहीं लगता. Obviously, you are interested in that thing, and you end up burning a lot of calories. Exactly. So play your sport if you want to burn calories. Yeah. Okay. So let's summarize this video in 3-4 lines. Yeah. You start. Get your ass up and do some work. Yeah. Second, don't keep sweating. कुछ भी करो. Basically, start. It doesn't matter. Just get and start with something. चाहे सिर्फ squat से करना, सिर्फ क्रंचेस से करना, सिर्फ प्लैंक से करना, कुछ भी करो, स्टार्ट करो. स्टार्ट कर दोगे एक बार, रूटीन बन जाएगा, यू विल अल्टीमेटली गेट एडिक्टेड टू इट. कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्टार्ट विद जंपिंग जैक्स एंड स्पॉट रनिंग एट होम, व्हिच इज गुड. यू कैन डू डांस. यू सम पीपल डू देयर कार्डियो एज डांस करो आराम से घर में, जो चीज अच्छी लगता है करो, जस्ट मूव योर बॉडी अपना. ऐसे डाउनलोड अ लॉट ऑफ फिटनेस एप्स, उनमें एक महीने का फ्री मंथ का लो एंड डू एवरीथिंग डिफरेंट. अगर ज्यादा बोर होते हो तो क्योर फिट लो, उसमें से एक दिन जुम्बा कर लो, एक दिन कुछ और कर लो, एक दिन कुछ और कर लो. सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल. क्योर फिट काफी अच्छा भी है अगर तुम्हें ऐसे सामने विजुअल भी चाहिए, कोई करता हुआ तुम्हारे सामने, सो दे गिव यू दैट आल्सो, सो व्हिच इज अ गुड ऐप. बाकी जस्ट गेट मूविंग एंड कंसिस्टेंट रहने के लिए और मोटिवेशन अप रखने के लिए बस अपना डिजायर्ड गोल दिमाग में रखो कि पतला होना है या फिर फैट लूज करना है या फिर मसल गेन करना है. Our older generation, उस टाइम पे जो हमारे दादा दादी हैं, वो लोग सारे उस टाइप पे ना फिटनेस ऐप होती थी ना, कुछ होता था, बट दे यूज्ड टू मूव अ लॉट. चल के जाना, साइकिलिंग करना, एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू बी अ लॉट. सो माय दादाजी इज 90 एंड स्टिल ही वॉक्स. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी बिग थिंग. सो जस्ट कीप वॉकिंग. अपना ये मत करो कि लाइफस्टाइल वैसा बना लिए, जस्ट
on your phone, watching TV, watching movies, laptop series. हाँ यार, मतलब Just ऑफिस से without निकलते ही ना time. Yeah. बोरिंग हो जाता है. लाइक फोन से, लैपटॉप से निकले फोन में, और ऑफिस के लैपटॉप से निकले पर्सनल लैपटॉप पे. मैं पर्सनली भी ऐसी चीजें कर लेता हूँ कभी कभार, बट आई प्रेफर कि मैं 1 घंटा या फिर एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट्स तो वर्कआउट करके आऊँ, चाहे मेरे को स्किपिंग करना पड़े, चाहे रनिंग, कुछ भी. True, उसके and बिना it is not just to look good. Look, appearance is another thing. First of all is your internal health, your overall health. जो बंदा बहुत अच्छे से बाहर फिट दिखता है, जरूरी नहीं है वो इंटरनली भी हेल्दी होगा. True. अगर आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए, आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, पाउडर्स, यू आर टेकिंग पाउडर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, कुछ अपने डाइट का ध्यान नहीं रख रहे, यू वोंट बी अ फिट पर्सन. अपने फिटनेस का ध्यान रखो. इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, डिसेंट दिख रहे हो, कोई बात नहीं, बट इंटरनली यू शुड बी सुपर फिट. योर इम्यूनिटी शुड बी गुड, योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर स्टेमिना, योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, एवरीथिंग शुड बी सुपर फिट. ये someone is requesting to come in the video. Sorry. Oh. अभी सेशन एंड ही करने वाले. I don't know ईशा यदुवंश. I don't know if she's your friend or what. But sorry ईशा, अभी सेशन एंड ही करने जा रहे हैं. Just save this session. I'll save it too on my Okay, feeds. cool. I'll do. Yeah. So guys, be consistent, eat healthy, and minimum 20 minutes का workout, walk, spot running, burpees, anything will do. It is not a 1 month thing, 2 month thing. It has to be your lifestyle. Be consistent with it. और Yeah. एडिक्शन हो जाएगा. 2-3 महीने बाद अपने आप एडिक्शन हो जाता है इन चीजों का. जब डोपामिन इतना रिलीज होता है ना एक्सरसाइज करते हैं, you'll feel happy all the way. Yeah. Starting is the toughest. I agree. Starting में you will feel uncomfortable. Obviously, uncomfortable तुम feel करोगे तभी you will make changes to your body. It is as simple as that. Right. But just stay home and work out and move your ass. Yeah. Thank you. Don't go out. Stay home and work out. Yeah.